Yes, students, we have done about chemical properties of S block elements, group 1 especially, formation of oxides, hydrides, and halides. Next topic in chapter is general properties of compounds of these compounds which are formed by these reactions with oxygen, air, or halogens. In the general, जो properties are that we need to study. So in that, first one is properties of oxides and hydroxides. You know that all alkali metals, first group elements, they are very reactive towards oxygen as well as air. ठीक है, openly air में जब हम इनको expose करते हैं तो they get tarnished, and if moist air के contact में आते हैं then they start react vigorously, and if they are burnt in oxygen they form variety of like oxides. Lithium generally forms monooxides, whereas all other elements of the groups can form peroxides and superoxides. Sodium forms up to peroxide. It depends on the size actually. Larger the size of cation, greater will be the possibility to form superoxides. So higher element जो है group के, they form superoxides by treating with more amount of oxygen, you can say. So all these oxides are actually oxides and hydroxides both are mainly ionic in nature. एक्सेप्शन मिलेगा आपको लिथियम के लिए थोड़ा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन, पोलराइजेशन ज्यादा है तो उसके ऑक्साइड्स में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर है, बट अदरवाइज ऑल अदर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स. फॉर दिस मेनली सारे कंपाउंड्स इस ग्रुप के आयनिक हैं, few exceptions for lithium compounds, and these oxides get readily dissolved in water to form hydroxides. हाइड्रोक्साइड्स हम डायरेक्ट मेटल को भी वाटर में डिसॉल्व करके बना सकते हैं, whereas these oxides are also readily soluble in water to form hydroxides. You can go through this equation. Reactions are given in book. Sodium oxide plus water giving sodium hydroxide plus this is sodium hydroxide is formed when sodium oxide is dissolved in water, and if you dissolve sodium metal in water then also you get sodium hydroxide plus साथ में hydrogen gas evolve होगी, but oxide के केस में नहीं. If you dissolve sodium peroxide with water then also we get sodium hydroxide plus H2O2. This H2O2 is formed because peroxides or superoxides जो हैं, they have, you can see that large amount of oxygen, so they behave as oxidizing agent. ये water को oxidize कर देते हैं H2O2 में. So always remember these reactions. When oxides are dissolved in water, only metal hydroxides are formed, whereas if peroxides or superoxides are dissolved in water, hydrogen peroxide is also formed by oxidation of water. Clear? And similarly for superoxide सोडियम का नहीं है बट बाकी एलिमेंट्स के लिए है. तो बुक में MO2 से भी रिएक्शन गिवन हो सकता है, नो डजंट मैटर, आप M लिख के भी कर सकते हो, बट इफ इट इज आस्क्ड स्पेसिफिकली फॉर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम का ही लिखना है इक्वेशन, तो यू नीड टू राइट लाइक दिस KOH plus H2O2 plus O2 will be formed. So in this way equations you can write for different type of oxides when dissolved in water. Okay, so these type of equations which are given in your question book can directly be asked. What happens when sodium peroxide is dissolved in water or potassium superoxide is dissolved in water? Peroxide किसी का भी हो बेटा इक्वेशन इसी टाइप की आएगी, हाइड्रोक्साइड्स प्लस H2O2. सुपर ऑक्साइड्स क्योंकि वो और ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है उनके अंदर, तो दे विल oxidize H2O into H2O2 as well as they will release oxygen gas. ठीक है, तो ये तीनों टाइप की equations you need to remember. Next is hydroxides जो अभी ये बने बेटा, इनका नेचर अगर हम डिस्कस करें, all alkali metal hydroxides are strong bases.
and due to this property the elements are also known as alkali metals because सबसे ज्यादा strong base first group के hydroxides ही हैं. एक exception है lithium hydroxide which is a weak base. And if we consider these are the hydroxides of these elements, and if we consider the basic nature of hydroxide, so basic nature का मतलब क्या है, कितनी easily ये OH ion solution में release करते हैं, that determines the basic strength of any hydroxide. So basic strength increases down the group. Cesium hydroxide is the strongest base, lithium hydroxide is weakest base. Reason, larger size of cation. लार्ज साइज होने की वजह से सीजियम और OH जो बॉन्ड है वो मतलब उतना ही लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, तो इट रेडिली रिलीजेस OH आयन. दूसरी तरह से आप देख सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है बिकॉज़ सीजियम विल नाउ गेट सेपरेटेड इनटू सीजियम आयन. तो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो सीजियम हाइड्रोक्साइड कैन रिलीज you can say OH ion with greater ease, hence it will be the strongest base. Lithium hydroxide, because of small size of lithium ion, is the weakest base because it cannot release OH ion readily. Okay, otherwise these are quite fairly soluble. Alkali हम उसी base को कहते हैं जो water में soluble होते हैं, तो all these are fairly soluble in water. ठीक है, और thermally stable भी है, heat करने पे भी stability as it is रहती है. Exception है lithium hydroxide. It gets decomposes into lithium oxide when it is heated. Otherwise बाकी के सारे hydroxides they are quite stable to heat. तो इसको हम कहते हैं thermal stability. They all are quite stable on providing heat. They do not decompose. Exception है lithium hydroxide. Clear? तो थोड़ा सा mention कर सकते हो आप. Basic nature increases down the group due to increase in size and decrease in ionization enthalpy of metal. And these all hydroxides are strong bases and fairly soluble in water with exception of lithium hydroxide. Next, second is halides. Excuse me मैम. Yes. मैम आपने अभी बेसिक नेचर के लिए एक डेफिनेशन बोल के एक बार बताना. फिर प्रॉपर्टी मैं आपने एक प्रॉपर्टी बोली थी. क्या बोल रहे हो? बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू. Basic nature increases down the group due to increase in size of metal ion and decrease in ionization enthalpy. Easily release हो जाएगा ion उसमें से and releasing OH ions with ease. Okay. जितना साइज बढ़ेगा बेटा ग्रुप में डाउनवर्ड उतना ही इजी और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. ये आपको एक जनरल ट्रेंड भी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग याद रखना है. व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑलवेज इंक्रीजेस वेयर एज एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता है. रिवर्स चलते हैं दोनों ट्रेंड, एसिडिक एंड बेसिक. सेकेंड इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स. हेलाइड्स आपको पता है कि सपोज अगर हम मेटल, any metal, it may be from this first group and X may be any halogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine. So these are you can say essentially ionic compound है. Again exception एक lithium के compounds का है because of small size of lithium. ये एक common चीज आपको lithium के लिए याद रखनी है. And after discussing these properties, we will also discuss anomalous properties of lithium. ये lithium क्यों differ करता है कुछ properties में बाकी elements से. So halides are mainly ionic compounds. Clear? अब इनमें जो basic trend आपको देखना है कि जो halides है इनमें ionic या otherwise they are ionic but covalent character जो आ जाता है ionic compound में due to polarization effect caused by cation to the anionic cloud. cation जो anionic clouds को अपनी तरफ attract करता है तो उसकी तरफ से distortion अगर आ जाता है electronic cloud में, then that ionic bond will not be purely ionic. That is called polarization. और उस polarization की वजह से bond थोड़ा सा covalent character वाला हो जाता है. तो that depends on size of cation. ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी. तो स्मॉलर द साइज ऑफ cation, greater will be the ionic covalent character क्योंकि polarization ज्यादा होगा. और जितना anion large होगा उतना polarization ज्यादा होगा. तो एक चीज याद रखो, अगर आप लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के कोई भी हेलाइड्स का आयनिक नेचर कंसीडर कर रहे हो, मतलब X में भी यहाँ पर सेम हेलाइड अगर हम रख रहे हैं, सपोज Cl we are chlorine we are taking, and if we need to discuss this ionic character, तो ionic character will increase down the group with increase in size of cation. कैटायन जितना ज्यादा साइज में लार्जर होगा उतना ही पोलराइजेशन इफेक्ट कम होगा। पोलराइजेशन वर्ड क्लियर है आपको? कैटायन जो साथ वाले एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके डिस्टॉर्ट कर देता है, और डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है। जहां ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी शेल्स में, बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं रह जाएगा, इट विल बी slightly covalent in nature. So lithium is the smallest cation, hence it causes greater extent of polarization of anions. ठीक है? और दूसरी तरफ anion जितना ज्यादा large होगा उतना easily polarize होगा। तो अगर हम anion वेरी करते हैं यहाँ पे लिथियम के लिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरीन with same cation, ठीक है, increase in size of anion results in increasing covalent character। यहाँ पर अगर हम ionic character की बात करें तो ionic character will be maximum for lithium fluoride, minimum for lithium iodide। lithium iodide will be more covalent क्योंकि यहाँ size anion का मैटर कर रहा है, cation सेम है, और जब anion सेम है cation डिफरेंट है, then smaller the size of cation, greater would be the covalent character। यहाँ ये covalent है, यहाँ ये ज्यादा covalent comparatively, otherwise तो predominantly ionic compounds ही हैं, ठीक है, सिर्फ lithium के केस में exceptions याद रखें। And these all halides are fairly soluble, otherwise थोड़ा बहुत lithium के halides में solubility as compared to कम है बाकी compounds की, क्योंकि size छोटा है तो lattice enthalpy ज्यादा है, but still lithium being smaller size, कुछ केसेस में इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, बेटा देखो एक चीज याद रखो, सॉल्युबिलिटी अगर फैक्टर आपने कंसीडर करना है कि कोई आयनिक कंपाउंड कम सॉल्युबल होता है, तो इसके लिए दो एनर्जी फैक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं। एक होती है लैटिस एंथैल्पी, दूसरी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। दीज टू फैक्टर्स, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, जब एक आयनिक क्रिस्टल अपने आयंस में सेपरेट होता है तो कितनी, मतलब उसके बनने के टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जब आप एक क्रिस्टल सॉलिड को सेपरेट कर रहे हो उसके आयंस में। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ लैटिस एंथैल्पी जो आयंस को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरी तरफ होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब आयन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपने मिक्स किया वाटर के साथ किसी भी आयनिक सॉलिड को, तो उसके आयन जब सेपरेट हुए उसके बाद सेपरेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल उनको सराउंड कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। उसमें एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी आपको देनी है, मतलब ये जो एंथैल्पी इट हैज टू बी गिवन प्लस वैल्यू में होती है, एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन। तो व्हेनेवर हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सीड्स beyond this, मतलब इससे ज्यादा अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है, then the ionic compound will be highly soluble, and if the amount of energy which is to be provided while separating ions in water, then that substance will not be soluble। तो जहाँ कहीं भी अगर आप पढ़ते हो कि जैसे लिथियम के कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं जो soluble ना हो, तो उस केस में क्या होगा कि लैटिस एंथैल्पी, बिकॉज जितना छोटे आयंस होते हैं उतना ही उनकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, कि स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं। लैटिस एंथैल्पी का मतलब दोनों तरह से आपको याद रखना है, जितनी एनर्जी आपको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना है, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी का आइडिया आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी लगा सकते हो कि मेल्ट करना है, आपने गैसियस स्टेट तक लेके जाना है आयंस को, ठीक है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी में साइज जितना छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। तो बोथ ऑफ दीज फैक्टर एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, एक ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों के बैलेंस पे डिपेंड करेगा कि कंपाउंड सॉल्युबल होंगे या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड वन, ऑक्सो, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स हेडिंग दिया हुआ आपके बुक में। Anyone who can tell what are oxo acids? This term oxo acids,
Yes, I'm not able to hear you. जिनमें ऑक्सीजन है वो तो क्लियर हो गया, उससे अलावा कुछ और थोड़ा और बेटर इफ यू कैन डिफाइन ऑक्सो एसिड्स और नॉर्मल एसिड्स. नॉर्मल एसिड्स क्या होते हैं? व्हिच कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन. ऑक्सो एसिड्स भी वही एसिड्स होंगे जो, क्योंकि एसिड टर्म आ गया तो मींस दे विल रिलीज हाइड्रोजन आयन. बट यहाँ ऑक्सो का मतलब है कि ये जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन पार्ट है एसिड का, दैट मस्ट बी बॉन्डेड विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक OH ग्रुप होगा उन एसिड्स में, बट वो OH ग्रुप ऐसा नहीं होगा कि वो OH आयन की फॉर्म में रिलीज हो. Rather, that OH group will release its hydrogen in the form of hydrogen ion. For example, if you can see the structure of H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है. सल्फर के साथ देखो दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, दो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सो ग्रुप हो गया. ये एसिडिक, मतलब जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है ये हो गया. जनरली जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है और एक OH ग्रुप होता है, जिसमें आ जाएंगे नाइट्रिक एसिड, दैट इज आल्सो एन ऑक्सो एसिड. HCl, HBr, मतलब जो हेलोजन के एसिड्स है वो नहीं है ऑक्सो एसिड्स, जिनमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा. और जब ये एसिड्स रिलीज करते हैं ना हाइड्रोजन आयन, तो ये OH ग्रुप डिसोसिएट होते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड कैन रिलीज 2 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल बिकॉज इसमें दो OH बॉन्ड है. तो ये इनकी एसिडिटी, इन एसिड्स की बेसिसिटी जो होती है, मतलब ये कितने नंबर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स. अकेला हाइड्रोजन अगर ऐसा होता है, जैसे फास्फोरस के कई एसिड्स हैं जिनमें सिंगल P के साथ H लगा होता है, बट वो H वो रिलीज नहीं करते हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में. ऑक्सो एसिड्स ओनली रिलीज हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम OH बॉन्ड्स, ठीक है. तो दीस एसिड्स आर नोन एज ऑक्सो एसिड्स. तो ऑक्सो एसिड जनरली सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स. तो these elements can readily form carbonates, sulfates and nitrates by treating their oxides with these acids. अगर इनके ऑक्साइड जो हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, then they form these kind of compounds, sodium nitrate, sodium sulfate, sodium carbonate. And all these compounds, maybe bicarbonates you can also say, they all are thermally stable, मतलब काफी stable ionic compounds हैं, crystalline solids हैं. And basically जो lithium के compounds हैं, they are thermally unstable. They readily dissociate to give lithium oxide back. तो ये एक exceptional property है lithium की कि उसके सारे compounds, hydroxides है या उसके carbonates हैं या sulfates हैं, nitrates हैं, they readily get dissociate on providing heat. तो ये जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है. थोड़ा बहुत आपको जो आयनिक नेचर या फिर एक हाइड्रोक्साइड के केस में उनका बेसिक नेचर, दैट यू नीड टू डिस्कस. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज anomalous properties of lithium. Actually S block elements and P block element, पूरा जो सेकेंड पीरियड का के एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, all these elements they have different properties. आपने ये देखा ना, हर एक ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज है वो सेम आती है बिकॉज ऑफ जनरल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन. बस बट एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड they have different properties from the other elements of the same group. लिथियम के अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होती है थोड़ी प्रॉपर्टीज, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि इसके कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, इसके कंपाउंड जो है वो थर्मली अनस्टेबल हैं, या और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिथियम के, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, बाकी के सारे मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं यू कैन इजीली कट देम विद नाइफ, एक्सेप्शन ऑफ लिथियम व्हिच इज हार्डर. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी, मतलब एज कंपेयर टू बाकी एलिमेंट्स लिथियम के लिए हायर होगा. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो आई हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट हर एक केस में आप देखोगे, जब हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे देन आल्सो यू विल कम टू नो. तो ऑल दीज आर
you can say they show different properties from the other elements of the group. Reason क्या है? First one is their small size. छोटे हैं बाकी एलिमेंट से कंपैरेटिवली. सेकंड, जितना साइज स्मॉल है, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली जो इनका साइज बाय चार्ज रेशियो होता है, जो एक्चुअली यू कैन से डिसाइड करता है कि वो कितना पॉलराइज करेगा एनायन को, दैट इज कॉल्ड पॉलराइजेशन पावर यू कैन से, और चार्ज बाय साइज रेशियो कहते हैं उसको. तो चार्ज ओवर साइज रेशियो अगर हम देखें तो चार्ज तो सबके ऊपर सेम है, बट साइज इसका छोटा है, तो इस छोटे साइज के लिए ये हाई रेशियो आ जाएगा, और ये रेशियो हायर आने से पोलराइजेबिलिटी जो है इसकी, एक कैटायन को पोलराइज करने की कैपेबिलिटी वो हायर होती है. तो ड्यू टू दैट इट कॉजेस हाई पोलराइजेशन. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो अदरवाइज एस ब्लॉक में तो मैटर नहीं करती बट बाकी ग्रुप्स में मैटर करेगी, वो है unavailability of empty d orbitals. सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास empty d orbitals अवेलेबल नहीं है, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप बॉन्डिंग की बात करते हो, हाइब्रिडाइजेशन. क्योंकि आगे जब पी ब्लॉक में हम जाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग मेनली शो होती है कंपाउंड्स में, ठीक है. तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द मेन थिंग. sp3 तक ही जाएंगे एलिमेंट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अगर उनके पास empty d orbitals अवेलेबल नहीं है. तो दैट इज द रीजन दैट दीज एलिमेंट्स कैन not increase their covalency or they cannot increase their state of hybridization, और इस वजह से बहुत सी प्रॉपर्टीज बहुत से कंपाउंड्स में ये वेरी करेंगे अपने जो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स हैं उनसे, ठीक है. बट यहाँ इस केस में आपको रीजन आप दे सकते हो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, बट अदरवाइज द मेन रीजन ड्यू टू विच लिथियम एंड बेरिलियम show different properties from the other members of the group are small size, high charge over size ratio, high polarizing power you can say, and one more thing, metallic bond strong बनाते. और आपको अगर याद है फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम फर्स्ट डे डिस्कस कर रहे थे, आई एक्सप्लेन दिस मेटालिक बॉन्ड क्या होता है. एक मेटल क्रिस्टल लैटिस के अंदर मेटल के जो एटम्स हैं वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ऑलरेडी, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के अंदर मूव करते रहते हैं. तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसने इस मॉडल का नेम ही ये रखा था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन का एक मूविंग सी होता है मेटल क्रिस्टल में जहां पर मेटल एटम्स फिक्स पोजीशन पे पड़े होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव. दैट मेक्स मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इस मेटल क्रिस्टल के अंदर मेटल आयन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितना स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, साइज ऑफ द मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिए एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम और साइजेस लार्ज है एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. तो इनके जो मेटालिक बॉन्ड्स है वो वीकर होते हैं, और मेटालिक बॉन्ड वीक होने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक होंगे, और जो उनकी डेंसिटी है लाइक जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्ट मेटल्स है हम कट कर सकते हैं वो कम होती है. तो ये सॉफ्टनेस बाकी मेंबर्स में बहुत ज्यादा है. सोडियम पोटेशियम कैन बी इजीली कट, जैसे हम चीज को कट कर लेते हैं घर में, उसी तरह से हम सोडियम पोटेशियम के क्रिस्टल्स को कट कर सकते हैं नाइफ से. बट लिथियम इज हार्डर. तो उसके हार्ड होने का रीजन क्या है, क्योंकि लिथियम आयन का साइज स्मॉल साइज होने की वजह से स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बना. तो ये आपको याद रखने हैं फैक्टर्स which are responsible for anomalous character. You can note down the reason due to which lithium shows anomalous properties: small size, high ionization enthalpy, large charge over size ratio, high polarizing power, and strong metallic bonds. One more you can add, unavailability of empty d orbitals, but otherwise for this first and second group इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है इससे, क्योंकि वैलेंसी एक ही शो करते हैं +1, तो उसमें d ऑर्बिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता. और अब एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं क्या, आपकी बुक में लिस्ट आउट किया हुआ 10 to 12 प्रॉपर्टीज. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट क्योंकि मैं बार बार आपको हर एक प्रॉपर्टी में जनरली भी बता रही हूँ. लिथियम इज अ
harder metal as compared to other elements of the group. Second, high melting and boiling point as compared to the other elements. ठीक है, otherwise period wise तो नहीं होगा high. Next is lithium mainly form covalent compounds due to large charge over size ratio and polarization power. Next is lithium compounds are thermally unstable, और जैसे उसके हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, उनको अगर आप हीट करते हो तो दे रेडिली डिकम्पोज टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड. अगर आप हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज कर रहे हो तो लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म. इफ यू आर डिकम्पोजिंग लिथियम कार्बोनेट तो CO2 अलग हो जाएगा, मतलब बचेगा आपके पास लिथियम ऑक्साइड. दैट इज बिकॉज कि लिथियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसकी लैटिस एंथैल्पी हायर है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स ऑफ लिथियम. तो लिथियम इजीली उसके जो कंपाउंड है वो रेडिली डिकम्पोज हो जाते हैं लिथियम ऑक्साइड में. नेक्स्ट थिंग, लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज कैन नॉट फॉर्म peroxides and superoxides, whereas other elements of the group can readily form. तो ये जो प्रॉपर्टीज हम टाइमली सारी करते चले आ रहे हैं ना, उन्हीं को लिस्ट आउट किया हुआ बुक में. यू कैन गो थ्रू विद दोस प्रॉपर्टीज एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक. Questions can be asked from that, whether it is asked that what is the reason that lithium shows different properties, or examples of certain properties in which lithium varies from other elements, which are called anomalous properties. Clear बेटा? कोई डाउट है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में यूजेस एक छोटा सा टॉपिक और है, तो वो पैराग्राफ पढ़ सकते हो, बट यूजेस में से हम जनरली इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट फॉर योर लाइक रेलेवेंस क्या इन एलिमेंट्स का हमारी डेली लाइफ में, उसके लिए आप पढ़ सकते हो उनको. ठीक है, लिथियम की बैटरीज आपने सुनी होंगी, मोबाइल फोन वगैरह में यूज होती है लिथियम आयन बैटरी. वैसे वो बैटरी तो आपको सिलेबस में 12th में है, बट उसमें भी लिथियम बैटरी सिलेबस में नहीं है. बाकी की बैटरीज है जो हम इन्वर्टर में यूज कर रहे हैं या वॉचेस में यूज कर रहे हैं, उनकी पूरी केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी रिएक्शंस N+2 अभी नहीं है, बट आप एक यूज में लिख सकते हो. लिथियम, सीजियम का यूज है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में. पोटेशियम इज आल्सो यूज्ड ओवर देयर, और इवन सोडियम एंड पोटेशियम हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी जितनी नर्वस एक्टिविटी है, आपने 10th में पढ़ा होगा ना, न्यूरॉन्स एक केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं जब मैसेजेस का ट्रांसफर करते हैं. तो ये सोडियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस अगर होगा बॉडी में, देन आवर नर्वस सिस्टम एज वेल एज जो हमारा ब्लड का भी कॉम्पोजिशन है, उनमें एक फिक्स अमाउंट में ये परसेंटेज होती है. तो ये सारे जनरल से यूजेस है, यू कैन गो थ्रू दैट. बाकी एज अ मेटल, रिएक्टिव मेटल्स तो यही है. इनके एलॉयज बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं. रादर मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप के एलॉयज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो विद दिस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर ओवर. टुमारो विल, नेक्स्ट पीरियड विल स्टार्ट विद सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स.